انڈیا کی فورن منسٹر ہیں سشما سوراج، انہوں نے بھی آج بات کی اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ اقتباس بتا دیتا ہوں کہ 16 اور 17 جون کو یہ دورہ کیا گیا جو انڈین فورن سیکرٹری کا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے وہ اپنے جو ہم منصب ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور اس کے علاوہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وینگ یی، ان سے بھی ملاقات کی۔ اور سشما سوراج صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ نئی دلی جو ہے وہ پاکستان کی جو انٹری ہے اس کو بلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تو انڈیا خود بھی ممبر نہیں ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چین کے ساتھ جو سفارتی طور پہ جو انڈیا اس وقت کوشش کر رہا ہے، اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ممبرشپ کی یہ جو بڈ ہے یہ کرائٹیریا کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ کریڈینشلز کے حوالے سے۔ یہ ایک اہم جو ہے تفریق ہے ان دو چیزوں کے درمیان۔ لیکن سشما سوراج صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر بن جاتے ہیں ممبر نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے تو ہم پاکستان کی انٹری کو بلاک نہیں کریں گے، اور جو کرائٹیریا بیسڈ اپروچ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ بہرحال اس کے حوالے سے تو ہم اپنے پینل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سمیتا، آپ سے اگر بات کا آغاز کریں، کیونکہ یہ کہانی جو ہے وہ آپ سے منسوب ہے، تو یہ کیسے جو ہے نا، مطلب یہ از دس پارٹ آف دا جو ایفرٹس ہو رہی ہیں چین کے ساتھ سفارتکاری کی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ نشچت روپ سے دیکھیے، کیونکہ چین جو ہے یہاں پر سب سے اہم کنٹینڈر بن جاتا ہے۔ 2008 میں بھی جب بھارت کو اسپیشل ویور دیا گیا تھا NSG کی طرف، امریکہ کے ساتھ بھارت کا نیوکلیئر سمجھوتا ہوا تھا، اس وقت بھی جو ہے آخری مومنٹ تک چین کو لے کر ایک سسپینس برقرار رہا۔ حالانکہ اس وقت اور اب کے وقت میں جو ایک ڈفرینس ہے، اس وقت چین خاموشی سے کام کر رہا تھا، پبلکلی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس بار چین نے پبلکلی یہی کہہ رکھا تھا کہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے اسپیسیفک ایگزیمشن نہیں ہونا چاہیے، خاص کر کے جو ملک نیوکلیئر جو پرولیفریشن ٹریٹی ہے NPT کے سگنیٹری نہیں ہے، جس میں انہوں نے ہستاکشر نہیں کیے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے مئی کے انت میں ہی جب بھارت کے راشٹرپتی پرنب مکھرجی چین گئے تھے، اس وقت بھی بھارت کے جو ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں ایس جے شنکر، ان کی وانگی سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ وزیر خارجہ ہیں چین کے۔ اور ابھی بھارت کے لیے کیونکہ 24 تاریخ کو سول میں پلینری میٹ ہونے جا رہی ہے NSG میں، اور اس میں ضرور بھارت جو چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی لیونگ نو اسٹون انٹرنڈ والی بات، اس کے ٹھیک پہلے نریندر موڈی کی بھی ملاقات ہونے والی ہے چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ سے۔ وہ تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس پہ سائیڈ لائنز پہ نا، وہ تو SCO کے سائیڈ لائنز پہ ہے نا۔ جی، تاشکند میں ہونے والی ہے وہ میٹنگ، لیکن دیکھیے وہ بھی بالکل سیم ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ وہ 23 تاریخ کی میٹنگ ہے، یہ 24 تاریخ کی پلینری میٹنگ ہے۔ تو کورٹنیتی میں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آخری مومنٹ تک جو ہے کام ہو سکتا ہے، نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں ڈرافٹ ٹیکسٹ پر۔ تو اب سشما سوراج نے جیسے آج خود کہا کہ کم سے کم 23 ملک کے ایسے وزیر خارجہ ہیں جن کے ساتھ وہ خود کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ دوسرے بھی ایک دو ملک ہیں، آسٹریلیا، ٹرکی ہو یا ساؤتھ افریقہ ہو، جنہوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں بھارت کو لے کر۔ لیکن بھارت کم سے کم یہ امید جتا رہا ہے کہ شاید اگر جو پروسیس کی بات ہے، جو کرائٹیریا کی بات ہے، اسے 2008 میں پورا کر لیا گیا تھا اس ویور کو پانے کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے بھارت کے انترراشٹریہ اسٹینڈرڈ کو دیکھا جائے جہاں تک نیوکلیئر نان پرولیفریشن کا سوال۔ اوکے، بہت بہت شکریہ۔ سمیتا شرما ہمیں بتا رہی تھیں کہ اس وقت انڈیا کی اس کے اوپر موہت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ موہت، یہ ہم کارزائی صاحب اور افغانستان کی طرف آنے سے پہلے یہ ذرا بات کر رہے ہیں، جو آج ایک سٹوری بریک ہوئی کہ انڈیا کے فورن سیکرٹری ایک خفیہ دورے پہ چین گئے 16 اور 17 جون کو، اور یہ ابھی پلینری بھی ہونے والی ہے۔ اب اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ کرائٹیریا کو آپ ایک طرف رکھیں اس ممبرشپ کے لیے جو انڈیا کی دلیل ہے، اور کریڈینشلز کی طرف جائیں۔ بہرحال اب اس میں ایک تو یہ کریڈینشل اور کرائٹیریا کا معاملہ ہے، دوسری بات جو انڈیا تواتر سے کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، اور دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ، کہ دلیل ان کی یہ ہے کہ 2008 کی جو ایک ویور ملا، جو ایکسیپشن ملی، اس ویور اور ایکسیپشن نے کرائٹیریا کے معاملے کو پہلے ہی حل کر دیا ہے۔ سو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، بنیادی بات میرے نزدیک اجازت یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک سیاسی ایشو ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کریڈینشل سے، کرائٹیریا سے بات آگے جا چکی ہے۔ دیکھیے، جو پہلے نیوکلیئر ڈیل تھی انڈیا کی، وہ بھی ایک ایکسیپشن کے تحت ملی تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس ایکسیپشن کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس ایکسیپشن کے تحت انڈیا کو نیوکلیئر کلب سے باہر ہونے کے باوجود ایک سٹیٹس ملا تھا، ڈی فیکٹو، لیکن ایک سٹیٹس ملا تھا کہ ان
को मेन स्ट्रीम किया जाएगा। और उस हद तक वो बात दुरुस्त है कि जो क्राइटेरिया की बात है वो उस एक्सेप्शन की वजह से किसी हद तक हल हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के पास वो एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान का मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान बहरहाल उस पर पूरा नहीं उतरता, चाहे बाकी चीजें जो हैं वो हम कहें कि पूरी हैं। बुनियादी बात यह है कि ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान दोनों ने एनपीटी साइन नहीं की हुई, और उस हवाले से एनएसजी में दाखिला जो है वो उनका बनता नहीं है उस तरह होना जिस तरह बाकी ममालिक का है। सियासत में इसलिए कह रहा हूं कि इट बेसिकली बॉयल डाउन टू कौन से एनएसजी के मेंबर्स हिंदुस्तान की सपोर्ट करेंगे और कौन अपोज करेंगे। तो उसमें जयशंकर साहब का जाना चीन बिल्कुल मेरे नजदीक कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि चाइना मेन ओपोनेंट है। हिंदुस्तान ये जानता है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक की वजह से चाइना जो है वो ये स्टैंड लेगा अपने लिए भी और खैर पाकिस्तान के हवाले से भी। लेकिन जो असल गेम चेंजर है मेरे नजदीक वो ये है कि कुछ यूरोपीय ममालिक जो नॉन प्रोलिफरेशन इशू के तहत बात करते हैं, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत से इतना नहीं है। उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अभी वो तैयार नहीं है हिंदुस्तान को उस तरह मेन स्ट्रीम करने के लिए जो एनएसजी की मेंबरशिप करेगी। पाकिस्तान के लिए मेरे नजदीक एक तरह से कामयाबी है, लेकिन ये पहली दफा है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल के एक स्टांस लेना होगा न्यूक्लियर इशू पे। हमेशा आपने देखा है कि सीटीबीटी एनपीटी पे या हिंदुस्तान पाकिस्तान के पीछे छुपा हुआ था या पाकिस्तान हिंदुस्तान के पीछे। एफएमसीटी पे भी यही बात है, फिसाइल मटेरियल की जो ट्रीटी है। ये पहली दफा है कि अगर इन्होंने शमूलियत हासिल करनी है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल के काम करना होगा। पाकिस्तान को फायदा है इस बात का, क्योंकि वरना सिर्फ हिंदुस्तान जाएगा और सूनर और लेटर हिंदुस्तान दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान को टैग अलोंग करना है ताकि अगर ये हो तो दोनों के लिए। That's a very interesting point. जाहिद साहब, बात यह है कि मोईद ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि यहाँ पे एक एडवर्सेरियल कन्फ्लिक्चुअल मॉडल हो कि जी पाकिस्तान को बाहर रखना है और हमने अंदर जाना है, उसमें जिस किस्म की मुश्किलात इंडिया को हैं तमाम तर सिफारतकारी के बावजूद, और सिफारतकारी के हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिफारतकारी की है। इंडिया के वज़ीर आज़म ने सिफारतकारी की है। हमारे यहाँ तो बेचारे सरताज अजीज़ साहब, मैं उनको बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन बेचारा मैं इसलिए कहता हूँ उनको कि वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ही हमारे यहाँ कोई नहीं, वो यहाँ से बैठ के फ़ोने कर रहे हैं। तो और उनके आप देखें जयशंकर साहब जो है वो खुफिया दौरे के ऊपर चीन ही चले गए, और नरेंद्र मोदी साहब भी जो है वो कर रहे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई अगर आपने ये, और इसमें मैं एक चीज़ कह दूं कि सुषमा स्वराज साहिबा से ये पूछा गया कि अगर मिसाल के तौर पे ना आप एनएसजी में इंडिया नहीं गया तो विल इट बी अ ग्रेट लॉस, और उन्होंने ये कहा कि देयर इज अ डिफरेंस इन सिटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड अ रूम। देखिए, इसमें इजाज सबसे बुनियादी मसला जो है वो एक्सेप्शनलिज्म का है इंडिया की, जो कि जिस पे था, और इस पे सिर्फ इसकी बात नहीं है कि पाकिस्तान या चाइना की तरफ से सिर्फ किसी रुकावट का सामना है, बल्कि आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एडिटोरियल छपा था जब मोदी साहब वहां पहुंचे थे, तो उसमें सिर्फ क्राइटेरियन की बात नहीं थी, क्रेडेंशियल्स को भी चैलेंज किया गया था। तो मसला ये है कि एक सिर्फ एक्सेप्शनिज्म जो है, लेकिन क्रेडेंशियल्स को वहां पे चैलेंज किया गया था, नॉट जस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द न्यूक्लियर थिंग बट ओवरऑल इंडिया का जो वही बात कर रहा हूं। देखो तमाम चीजें आती कि उसमें चैलेंज किस बात पे किया था। एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि एनपीटी का मामला है कि अगर आप एक क्राइटेरियन रखते हैं कि 40 ममालिक जो इसमें शामिल हैं उन्होंने सब ने जो है एनपीटी को साइन किया हुआ है, और आप इंडिया को एक एक्सेप्शन देते हैं, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है प्रोलिफरेशन के हवाले से ये बात की गई थी कि जो है इंडिया जो सिर्फ एनपीटी की साइन की नहीं, प्रोलिफरेशन जो है दो, अगर पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर कंट्री, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया पे भी ये बात आई है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ क्राइटेरियन की बात नहीं, क्रेडेंशियल पे भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं इस वक्त। अब बात ये आती है नहीं, बल्कि उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग में तो एक जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि जो इंडिया को ये जो वेवर मिला, और उसके बाद उसमें यह है कि इंडिया जो है वो चूंकि यूरेनियम का उसका मसला है, तो वो जो उसके पास एग्जिस्टिंग वो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा और सिविलियन के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो एडिटोरियल था उसमें एक बात और भी वाज़ेह हुई थी, वो यही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक लिहाज से जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कह लें या इंडिया की तरफ से जो है आप उसको बरात दे रहे हैं, तो उसके नतीजे में भी ये एक लिहाज से जो है वो रेस वेपन न्यूक्लियर रेस जो है शुरू हुई है, ज़्यादा तेज़ हुई है। सॉरी, शुरू बहुत पहले हुई है लेकिन तेज़ हुई है। अब मसला ये आता है कि अब पाकिस्तान की तरफ से देख लें,
मतलब ये कि इंडिया का एक पॉइंट वीक है, मतलब अब वो नहीं है कि अमेरिका कहेगा और सारे लोग जो है वो आ जाएंगे और फिर जो है इन चीज़ों को जो है कोई कंसिडरेशन नहीं होगी। चाइना ने दिखा दिया, दूसरे ममालिक ने दिखा दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये आता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी रिएक्टिव रही है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही है कि हमें इंडिया को कैसे ब्लॉक करना, और आपको शायद अंदाजा ये मालूम होगा कि जो हमने जो अप्लाई किया था उसकी मेंबरशिप के लिए, वो लास्ट मोमेंट पे हमने एक एप्लीकेशन वहाँ पे देखी थी। मसला ये आता है कि अगर हम उसको दूसरे तरीके से लेते कि अगर इंडिया को अगर वो हकदार है तो हम उस क्राइटेरियन पे पाकिस्तान भी उतने ही जो है क्या कहते हैं उसको भी राइट है, तो आप उसको सिर्फ हम ब्लॉक की तरफ अगर जाते हैं तो वो फिर मकसद पूरा नहीं होता है। इसके साथ साथ जो है कि अगर आप अपने समझते हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, आपको जो है वही जो है इंडिया के जो ऊपर क्राइटेरियन हो रहा है वो आप पे भी जो है वो उसी तरह से इतलाक होना चाहिए, तो आपको ज्यादा प्रोएक्टिव एक पॉलिसी रखनी चाहिए थी जिसमें क्विकली सर। वेरी क्विकली एजाज में 2-3 पॉइंट कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इंडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से उनका रवैया इतना मानदाना नहीं है, इसकी क्या गारंटी है कि इंडिया मेंबरशिप बनने के बाद भी वो अपने इस वादे को पूरा करेगा। दूसरी बात, बल्कि वो कह रहे हैं कि अभी क्रेडेंशियल पे करो, उसके बाद तो वो और वो चीनी भी बड़े समझदार हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रही। और दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, और फिसल मटीरियल कट ऑफ के कन्वेंशन के हवाले से वो दे आर हाइडिंग बिहाइंड पाकिस्तान। और फिर तीसरी बात यह है कि इंडिया ने जो सिविल और मिलिट्री जो अपने जो रिएक्टर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन की हुई है वो एडिशनल प्रोटोकॉल भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। तो ये वो कुछ 3-4 चीजें हैं जो कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के क्रेडेंशियल इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इवन इफ यू वर टू फॉलो द क्रेडेंशियल क्राइटेरिया। तो और उसके बारे से मैं एक मिनट, वो जो आर्म्स कंट्रोल का आज जो एडिटोरियल है वो मेरे ख्याल में दैट हिट्स द नेल ऑन द हेड इन विच they have continued the line of argument which was taken up by the New York Times editorial. By the New York Times. आप जी हाँ, इसमें एक और जो मोहित कह रहे थे कि हमें जो इंडिया पाकिस्तान को मुश्तरका लाए में बहुत सारी चीजों में हमने कोऑपरेशन हुई भी है। FMCT का जो मामला था उसमें, लेकिन FMCT में तो वो पीछे हमारे छुपे में ना, That's what I'm saying कि जो है, लेकिन आउटलायर का जो इल्जाम है वो तो सारा हम पे लग रहा है ना। सही कह रहे हैं, वो इंडिया के ऊपर नहीं लग रहा। लेकिन मैंने एक वक्फा भी लेना, बट बिफोर दैट क्विकली, हाउ डू यू लुक एट दिस, मतलब ये जो प्लेनरी हो रही है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आउटकम? मेरा ख्याल स्टेटस को रहेगा। इस वक्त ऑपोजिशन इतनी हो गई है और इतने डिफरेंट क्वार्टर से हुई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आएगी। देखिए, एक बात बुनियादी समझ लीजिए, ये टाइमिंग का इशू है। अगर ये किसी को ख्याल है कि क्योंकि इस दफा हिंदुस्तान को मसाइल पेश आए हैं एंट्री में तो दिस इज द एंड ऑफ इट, ये गलत है। ये मामला चलता रहेगा और सूनर और लेटर पॉलिटिकल सर्कमस्टांस ऐसा बनेगा कि हिंदुस्तान को स्पेस मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो न्यूक्लियर डील का एग्रीमेंट उनको एक हद तक वो स्पेस दे चुका है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे सूनर और लेटर। इसलिए मैं ये स्ट्रेस कर रहा हूं कि अभी प्लेनरी में तो शायद कुछ ना निकले, लेकिन पाकिस्तान को अपना गोल ये रखना है कि किस तरह हिंदुस्तान के साथ शमूलियत हासिल की जाए, इस तरह के दोनों इकट्ठे अंदर जाएं। ठीक है, ये अहम चीज़ है और प्रोग्राम का पहला हिस्सा था कि जिसमें हमने बात की ये NSG के हवाले से, क्योंकि प्लेनरी होनी है, और ये भी बात आ गई कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो है उनका जो सीक्रेट विजिट था चाइना का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और इसमें ये भी एक अहम चीज़ है कि इंडिया जो है वो बुनियादी तौर पे इसको अमंग अदर थिंग्स वो एक स्टेटस के लिए और लेजिटिमाइजेशन while staying outside of the non-proliferation treaty. बहरहाल इस वक्त एक वक्फा